آپ کو لاسٹ عید کارڈ کب ملا تھا؟ یار مجھے نا عید کارڈ بہت اچھے لگتے ہیں. عید کارڈ اور اسپیشلی چوڑیاں اس میں آتی تھی. کون مہندی ہوتی تھی, چوڑیاں ہوتی تھی اور عید کارڈ ہوتا جس پہ مزے مزے کے شعر لکھے ہوئے تھے. اور مجھے لاسٹ عید کارڈ آیا تھا آئی تھنک 7 ایئرس پہلے, اور وہ میری ایک کلاس فیلو نے دیا تھا, صبا نام کی نا, اس نے مجھے عید کارڈ دیا تھا. وہ لاسٹ عید کارڈ تھا, میرے پاس ابھی بھی پڑا ہوا ہے سر. میں نے وہ مہندی جو خراب ہو چکی ہے اسے بھی سنبھالا ہوا ہے, اور ایون جو بینگلز اس میں آئی تھی, جو چوڑیاں آئی تھی, ان کا کلر اتر چکا ہے, لیکن مجھے اتنی پسند تھی اور وہ میرا لاسٹ عید کارڈ تھا. اور لیکن اب وہ رواج ختم ہو گیا. فیلنگز کیسی تھیں یار؟ انتظار ہوا کرتا تھا, لٹرلی انتظار ہوتا تھا کہ یار عید کارڈ آنے. جتنی بھی دوستیں ہوتی تھی نا, انتظار ہوا کرتا تھا کہ عید کارڈ آنے. اور اسپیشلی ہم جایا کرتے تھے, میری دوست ہے, میں گاؤں سے جیسے آپ کو پتا بلونگ کرتی ہوں, تو ایک الگ گاؤں میں رہتی ہے, ایک الگ گاؤں میں, اور میں اسپیشلی جایا کرتی تھی انہیں عید کارڈ دینے کے لیے. تو پیسوں کا برانڈ کا, تو لوگ کہتے ہیں برانڈ کے کپڑے ہوں تو عید بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب پہلے اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہم ایک عید کارڈ لیا اور دور تک گئے ہیں دوستوں کو دینے کے لیے, لیکن اب تو وہ رواج ختم ہو گیا. آپ نے کبھی دیا عید کارڈ کسی کو؟ میں اسپیشلی جب کالج میں تھی تو میں نے کافی زیادہ عید کارڈ لے کے آنے, پھر ان کو لکھنا, لکھ کے پھر اسپیشلی میں نے ڈاکخانے میں جانا, وہاں پہ بھیجنا. اور خود میں عید سے 2 دن پہلے ویٹ کر رہی تھی ڈاکیے کا کہ کب آئے گا اور مجھے عید کارڈ. اور جب آتے تھے نا, کسی کے اندر نا وہ چین ہونی, کسی کے اندر رنگ ہونی, اور ساتھ وہ اتنا خوبصورت لکھا ہونا, کسی کے اندر پھول وہ بالکل مرجھا چکا ہوتا تھا. آپ کو یاد ہے کہ وہ جو شعر اس میں لکھا کرتے اس کے لیے ہم بیسٹ ہینڈ رائٹنگ بھی ڈھونڈ رہے ہوتے تھے کہ کس کی اچھی رائٹنگ ہے, کس کی اچھی ہے. تو یہ چیزیں تو ہم نے وہ سارا کر کے, تو وہ بڑے اچھے تھے. اور آج کل جو ہیں, لیکن آج کل بھی ہم لوگ بے شک وقت چینج ہو گیا ہے, لیکن ابھی بھی سب سے پہلے جیسے ہی ہم لوگ عید کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے فوراً بعد ہم واٹس ایپ کے اوپر ایک میسج بناتے ہیں, اور ٹک 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 جتنے بھی لوگ سب کو کر کے, اس کے بعد پھر جب ہم قربانی کر لیتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم فون پہ تو بات کرتے ہی ہیں, لیکن وہ میسج لازمی ہم لوگ. لیکن فارمیلٹی ہے میرے خیال میں, وہ فیلنگز نہیں رہی, وہ محبت نہیں رہی. نہیں, وہ یہ بات آپ کی واقعی ہے. اور پھر وہ کارڈ جو ہوتا تھا نا, پھر کیونکہ 2 دن پہلے آ چکا تو بار بار اس کو دیکھنا پڑھنا. اور ابھی بھی میرے خیال میں میرے پاس تقریباً 1000 سے زیادہ پڑے ہیں میری ماما کے گھر میں. اور اتنا بڑا باکس ہے جس کے اندر وہ سب فرینڈ کے لیٹر بھی پڑے ہیں, کیونکہ پہلے ہم لیٹر بھیجتے تھے, لیٹر بھی پڑے ہیں. اور عید کارڈ, وہ لیٹر فیمل کی طرف سے آتے تھے. نہیں ظاہر ہم کالج ہمارے وقتوں میں دیکھیں یہ نہیں تھا کہ ہم لوگ اس وقت لڑکیوں کا کالج علیحدہ ہوتا تھا, لڑکوں نہیں لڑکوں کا علیحدہ. اب مجھے آتے ہیں, اصل کہانی میں ہی بتاؤں گی. اب مجھے آتے ہیں, اب مجھے لڑکوں کی طرف سے بھی بہت زیادہ, بلکہ اب میرے جتنے بھی اب میرا یہ ہے کہ اب میرے پیج کے اوپر 2-3 لاکھ میرے فالوور ہیں. تو اب تو میرے خیال میں سارے جتنے بھی فالوور ہیں وہ سارے لڑکے ہیں. تو اب تو میرے خیال میں مجھے اتنے زیادہ لڑکوں کی طرف سے نا, آج کل بھی مجھے کارڈ آتے ہیں جو سندھ کے لوگ ہیں, جو KPK کے لوگ ہیں, جو گلگت بلتستان کے لوگ ہیں, جو جن کی پولیٹیکل افیلیشن آپ سے وہ بھیجتے ہیں, وہ سارے جتنے بھی ہیں جو میرے فالوور ہیں وہ سب مجھے بھیجتے ہیں. اور آپ بلیو کریں کہ جیسے ہی ان کا کارڈ پہنچتا ہے, اور میں سب کو رپلائی دیتی ہوں. دیٹس گڈ میم. اس میں آپ کو بھی آپ کے فالوورز بھی کارڈ بھیجتے ہیں, اور آپ کے فالوورز بھی لڑکے ہیں, آپ تو ماشاءاللہ ابھی بھی کافی سیٹ ہیں. ابھی ریسنٹ, اس سے پہلے مجھے بتائیں, پہلے کا بتائیں کہ آپ کو کارڈ جب ملتے تھے تب کیسا لگتا تھا؟ یہ بتائیں گے کہ انہیں ابھی کارڈ آتے ہیں. اصل میں کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, ابھی زیادہ آتے ہیں, اب تو ختم ہو گیا نا, اب تو میسیجز آتے ہیں, وہ تو میں آپ کے سوال کا جواب دیتی ہوں. کچھ ایسے بھی کارڈ ہوتے تھے جن سے دل کی دھڑکنیں تیز ہوا, میں انہی کا پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ اندر کی بات ہے, وہ ٹیکنالوجی کے نظر ہو چکے ہیں. اب یہ حال ہے کہ آپ یقین کرو کہ PTI میں جب بھی میں کسی جلسے پہ جاتی ہوں تو وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں جو ینگ یوتھ ہے, KP کے ہوں, چاہے وہ آپ سندھ میں ہو یا پنجاب میں ہو, وہ آتے ہیں اور آپ کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. اچھا, ایک دفعہ میرے ساتھ میرا ڈرائیور تھا, تو اس نے نا وہ گھبرا گیا کہ ہو یہ پتہ نہیں باجی کے ارد گرد کیوں اتنے جمع ہو گئے لوگ نا. تو اس نے ان کو نا ذرا سختی سے پرے کرنے کی کوشش کی. میں نے اس کو روک دیا, میں نے کہا دیکھو یہ مجھے نقصان پہنچانے نہیں آئے, یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ ایک کاز, ایک عمران خان جو ہے ان کا لیڈر ہے, اس سے محبت ہے, اور چونکہ ہم اس کے ساتھ نکلے ہوئے ہیں اور ایک اس کے سپاہی ہیں, تو ہم سے بھی یہ محبت کرتے ہیں. تو آپ ان کو, اور وہ بڑی عزت کے ساتھ
बड़ी इज्जत के साथ वो सेल्फियां लेते थे। वैसे और भी मुझे जब नहीं भी पता वो कहाँ कहाँ में आ लगाते जाता है तो होंगे। वो उसे सोशल होना पड़ता है। वैसे भी नहीं, जो आप देखिए- पॉलिटिशियंस होते हैं उनको मोहब्बत होती है, मोहब्बत होती है और वो ये आपको इज्जत दे रहे होते हैं। बिल्कुल इज्जत दे रहे हैं। वरना आप क्यों आपका आपके जरूरी साथ- वो लोग हैं। वो क्यों आपके साथ कोई इस तरह से वरना से बिल्कुल। तो उनकी कोई नियत नहीं होती, उनकी जो है इज्जत की नियत होती है और वो फिर जहाँ जहाँ भी लगाते हैं मुझे खुशी होती है इस चीज से, क्योंकि मुझे पता होता है कि ये वो लोग हैं जो कि पाकिस्तान की खातिर निकले हुए हैं। ये क्यों जलसे अटेंड कर रहे हैं, इनको क्या कोई इनको कुछ ना तो हमने किसी को कभी कोई नान खिलाए हैं, ना पानी दिया है, ना कोई और इस तरह की बात की है। वो जज्बे के साथ आते हैं। बाकी ये लोग हैं तो हम लोग हैं, अगर ये ना हमें हाँ। इस तरह फॉलो करें तो हम कुछ भी नहीं तो हम कुछ भी नहीं है। कुछ भी सना, आपको जवाब ऐसा मिल गया आपको इस सवाल का? नहीं, नहीं, आप मुझे मुझे बताएं, अभी आपके जवाब दौर में, नहीं आपके जवानी के दौर में, खैर अभी भी आप जवान हैं लेकिन ये मेंशन नहीं चाह रहा। शुक्र है कि रिफॉर्म हो गया। हाँ, ये चीज असल में मुझे नहीं चाह वैसे मुझे एक रहा चीज का डाउट हो रहा है कि क्यों बार बार आपको कह रहे हैं कि अभी भी आप जवान हैं, इनको शक नहीं, मैं आपको भी कह रहा हूँ मैं दोनों को कह रहा ये हूँ। बात नहीं, है। असल में मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जब मैं जिक्र करता हूँ कुछ अरसा पहले का, जब आप टीन एज में थे, आप यंग थे, तो अब तो डेफिनेटली अब फर्क तो भी है हम ना, young हैं, लेकिन मैं ये साथ में बात कह देता हूँ कि बोलें। फील ना ये करें। ये नहीं सुधरने वाला ओके जी, मैंने मान लिया आप जवान हैं। ये गलती ये मान देख ली लें। आपने। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप जब टीन एज में थे, अब तब कैसे क्या कार का क्या रिवाज था? असद देखिए, अब आप 40 साल के, अब हम 25 मैंने मान लिया लेकिन भाई। हमने ये बात नहीं नहीं की कि आप की। 40 क्यों, हम तो अभी भी कहते हैं आप हमारे साथ Actually, मैं 25 आपको एक कैसे? बात बताऊं, जब आप टीनेजर होते हो ना, उस वक्त आप मैच्योर इतने नहीं होते हैं। आपको रिलेशनशिप ना तो समझ आती है, ना संभालनी आती है। संभालनी, बिल्कुल सही। तो वो बस आए भी और गए भी, वो वाली कहानियां चल रही ये है। हकीकत है, मैं यानी उस दौर की मोहब्बतें परवाह नहीं अब करती। जितनी हम कदर करते हैं ना अपने रिलेशनशिप की और कितनी उनकी हिफाजत करते हैं, उस जमाने में ये बात नहीं थी। उस जमाने में क्या डर था या उस तरह से मौके नहीं थे कि मोहब्बतें परवान चढ़े? उस जमाने में क्योंकि respect आजकल तो हो- काफी respect रिसोर्सेज बड़ी हैं, नहीं, लेकिन उस आजकल जमाने तो में नहीं। अब पता क्या बात है, अगर किसी को बंदा पसंद करता था ना, तो बंदा दूर से ही एक नजर देख लेता था, बंदे को सुकून हो जाता था कि आंखें ठंडी करने वाली बात है कि आंखें ठंडी कर लेते थे हम। नहीं, ये हकीकत है, लेकिन वो एक रिस्पेक्ट थी। लेकिन आजकल का जो दौर है वो चीजें अब नहीं है, आप क्या कहती हैं इस बारे अब चीज वो नहीं है। उस्मा शायद मेरी बात से में? मैं आपको आपकी वो दिन याद करवा रहा हूँ जिंदगी- जो आप गुजार चुके हैं। जिंदगी बहुत बदल चुकी है, बहुत बदल चुकी है। हमारे ज़माने में हमारे साथ हमारे पेरेंट्स सोशल टेबूज की वजह से बड़ी सख्ती करते थे कि ओ हो ये कहीं अगर लड़कों के साथ देखी गई तो पता नहीं कितने बड़े स्कैंडल बन बिल्कुल जाएंगे। ऐसी बात तो है। हमारे पे बड़ी सख्ती होती थी, यानी कि मैं घर से अकेली मुझे निकलने की भी इजाजत नहीं होती थी। लेकिन अब हमारा माहौल यकसर बदल गया है। हमारी जो बच्चियां हैं माशाल्लाह, वो अब लम्स में कोई पढ़ रहा है, कोई अपने आगा खान में पढ़ रहा है, को-एजुकेशन में। को एजुकेशन, और उनकी प्रोजेक्ट वर्क होता है, लड़के लड़कियां इकट्ठे मिलकर रिसर्च कर रहे होते हैं। तो वो एक दूसरे को, वो लड़के लड़के के नहीं, वो कोलीग्स होते हैं, Colleagues होते वो हैं, friends palace होते हैं में। जो आपस लड़की में लड़के मिलकर का। इकट्ठे काम। अब आप दोनों बैठे हैं यहाँ पे, आप कोलीग्स हैं, Exactly. आप इकट्ठे एक चैनल पे काम कर काम रहे कर रहे हैं। हैं। तो वो जो एक होता है ना कि ये लड़की लड़का लड़का। लड़की वाला, वो उसका खत्म हो कॉन्सेप्ट ही गया। बदल गया सारा। तो आई थिंक ये एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि एक सोसाइटी में जो लड़कियां और लड़के हैं उनको इकट्ठे मिलके जिंदगी गुजारनी है, और एक नॉर्मल तरीका यही है समझ कि भी आप लेते हैं एक दूसरे को। अपने लाइंस ड्रॉ करें, विद इन लिमिट्स रहें। और अगर देखें इस्लाम में इजाजत है पसंद की शादी की, तब कीजिए। तो अगर आपको कोई पसंद आ गया, बाय ऑल मीन्स फिर आप लेकिन कहते हैं कि हमारी सोसाइटी में लड़की को हर चीज पसंद की मिलती है सिवाय दूल्हे के। हाय, ये बड़ा बड़ा जुल्म है। ये बड़ी जुल्म, ये ज्यादती है। जाती है ना ये। ये देखिए बहुत इसके अच्छे पहलू भी हैं। देखें वेस्ट में जो लड़कियां हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं शादी की। कई 40-40, 50-50 साल की हो जाती हैं, उनकी शादियां नहीं होती हैं। Actually, तो they don't prefer to marry. उनको अप्रोप्रिएट बंदा भी नहीं मिलता है, तो कुछ उनको ना फैमिली की कोई हेल्प होती है, सपोर्ट होती है जो उनके लिए कोई ढूंढ ले सही बंदा। हर एक तो नहीं जाके तो अपनी पसंद की शादी कर सकता ना। तो हमारे सोसाइटी में जो अरेंज मैरिजेस है वो कई बड़े सक्सेसफुल भी होते हैं, फैमिली सपोर्ट होती है, 2 फैमिलीज होती हैं और बड़े अच्छे, यानी कि उनकी बोलते हैं जिंदगी- घर तो husband wife ने चलाना है, वो arrange लेकिन- marriage हो या लेकिन- love marriage हो। लेकिन अगर एक लड़का और लड़की जो है वो अपनी पसंद से करना चाहें तो इस्लाम आपको इजाजत देता है। तो इसलिए हमारी जो सोसाइटी में जो नेगेटिव बात है
کہ جس طرح آنر کلنگز ہوتی ہیں کہ لڑکا لڑکی نے اپنے پسند سے شادی کر دی تو چلو جی ان کو اٹھا کے اڑا دیا. یہ بیلنس رکھنا پڑتا ہے اور اسلام نے ہر چیز میں ایک توازن رکھا. تو ابھی بچوں کو بھی چاہیے کہ لو میرج کو ارینج میرج میں کنورٹ کریں, خود سے ڈیسیژن نہ لیں, کورٹ میرجز نہ کریں. دیکھیں وہ تو بالکل اگر پسند کی شادی وہ کرنا چاہیں تو ماں باپ کو انوالو کریں, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ ریسپیکٹ کریں اپنے بچوں کی خواہش کو, ان کی شادی کروا رہے ہیں. اصل ٹاپک چینج ہو رہا ہے, دوبارہ سے عید کی طرف آتے ہیں. میں ایک بہت ہی اہم سوال کرنے جا رہی ہوں. بولنے والے میں عید کو نہیں بولنے والی, کیونکہ میں یاد رکھنا چاہ رہی ہوں کہ یہ عید کا موقع ہے, ہم کسی بھی سیریس گفتگو کی اچھا آج عید کا موقع ہے اور آپ نے چوڑیاں نہیں پہنی. میں نے یہ چیز اتنی نوٹ کی ہے, ایکچولی میں چوڑیاں صرف تب پہنتی ہوں جب مجھے اسپیشل ون کی طرف سے آتی ہیں, تو وہ ابھی آئی نہیں تھی تو اس لیے میں نے ادھر تو اسپیشل ون ہے. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میری فیملی میں میری 2 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ, اور میرے ہسبینڈ جو ہے نا عید چاند رات جو ہوتی ہے نا, اور جو عید سے 1 رات پہلے وہ بازاروں میں جاتے ہیں اور وہ مہندیاں بھی لگواتے ہیں اور وہ چوڑیاں بھی, حالانکہ وہ بڑے جتنا مرضی پڑھ لکھ جائیں لیکن چوڑیاں بھی انہوں نے پہنی ہیں, مہندیاں بھی انہوں نے لگائی. لیکن وہ چوڑی اور مہندی تب مزہ آتا ہے نا جب آپ کا چاند بھی ہو. لیکن آپ نے سنا کی بات نوٹس نہیں کی, آپ نے سنا دعا کرو اس کو جلدی سے چاند ملے اپنا. اس نے کیا کہا بلا, آپ نے غور نہیں کیا, اس نے کہا جب مجھے اسپیشل ون کی طرف سے آتی ہے میں تب پہنتی ہوں. اس کا مطلب ابھی تک نہیں آئی وہ اس دفعہ, چوڑیاں ابھی تک نہیں آئی, اس دفعہ نہیں آئی. ہاں جی اس دفعہ کیوں اسپیشل ون آمد ہونے والی ہے نا, اس وجہ سے نہیں ہے. آپ یوں نہ کیجیے, اچھا پہلے انتظار کی گھڑی بڑی مشکل سے گزری ہے. اچھا میں آپ سے یہ پوچھنے والی تھی کہ آپ کو لاسٹ عید کارڈ جو ہے وہ کس نے دیا تھا, اور ایسا کون سا عید کارڈ تھا جس کے آپ کو شدت سے جس کا انتظار ہوتا تھا؟ پھر آؤٹ آف کورس سوال کر, وہ تو نہیں, اس کا مطلب ہے کہ آپ نہیں بتانے والی. نہیں یہ صرف یہ بتا دیں لاسٹ کب ملا. لاسٹ کا آپ تو صرف واٹس ایپ میسجز آتے ہیں اور کک نہیں آتا. اچھا واٹس ایپ میسج میں وہ ہوتا ہے. ہاں لاسٹ عید کارڈ میں آپ کو بتاتی ہوں, لاسٹ عید کارڈ جو یعنی کہ یہ جو پچھلی عید گزری ہے 2 عید کارڈ آئے تھے اور وہ 2 سینیٹرز نے بھیجے تھے, وہ پتہ نہیں کون سینیٹرز تھے لیکن انہوں نے غالباً مجھے لگتا ہے ساروں کو بھیجے ہوں گے, اور ورنہ کسی کا کوئی عید کارڈ نہیں آیا ہمارے ساتھ. نہیں یہ حقیقت ہے کہ جتنے بھی پولیٹیشین ہے نا, کچھ پولیٹیشین بھی ہیں, جتنے بھی ایم این اے وہ بھیجتے ہیں, وہ اپنے نام کے بنا کے بھیجتے ہیں. اور میرے نام میں ہمیں بڑی عید پہ تو نہیں آتے لیکن چھوٹی عید پہ ہر ایک کی طرف سے کارڈ آتے ہیں. یہ نہیں ہے چاہے سینیٹرز ہو, چاہے ایم پی ہو, چاہے ایم این ایز ہو, ہم پریفر کرتے ہیں کہ کارڈ کے ساتھ ایک کیک بھی آ جائے. کارڈ آتے ہیں لیکن پبلک میں رواج نہیں رہا, پبلک میں آپ نے نہیں کہا کہ کارڈ آنے چاہیے, تو آپ کس لیے کارڈ نہیں لے کے آئے؟ ہاں جی فرمائیں. آپ کو ہمیں بھی دینا چاہیے. ابھی تو ہم ڈسکشن کر رہے ہیں کہ ہمیں اس کو ریوائیو کرنا چاہیے, تو میں اس کو اسٹیپ لیں گے نا, ہم کریں گے. آتے تو آپ ریوائیو کرنے کا کہتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل صحیح کہے, آئی ایگری ود یو. میں آپ کو بھجوا دوں گا, آپ کو بھی بھجوا اور دوں گا. دیکھیے کہ آج عید کا دن ہے اور ثنا آپ نے ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کھلایا بھی نہیں ہے. اس کے بعد ضرور اسد آپ کیک منگوا رہے ہیں نا, اس کے بعد بلکہ کیک باہر پڑا ہوا ہے. میں نے کہا کیک اور کارڈ اکٹھا ہونا چاہیے. اسد آپ کارڈ جیسے یہاں سے ہم اٹھیں گے پروگرام ختم کریں گے, ہم منہ میٹھا کریں گے باہر جا کے. اسد لے کے آئے ہیں کیک منہ میٹھا کرنے کے لیے. اسد آپ میری ساتھ عیدی بھی دیں گے, میرا بھی منہ میٹھا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے ضرور, میں حاضر. اسی کے ساتھ ہم اپنے گیسٹ کو خداحافظ کہہ دیں, کیونکہ یہ عید کے دن پہ خاص موقع پہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے آئے ہیں. سنا خدا حافظ کہنے سے پہلے صرف 1 منٹ, کوئی خاص پیغام آج کے دن کے لیے, عید کے موقع پر؟ آج کے دن کے لیے میں خاص پیغام ان لوگوں کو دینا چاہتی ہوں کہ جو آج کل آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی جو وبا ہے وہ بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے. آپ لوگ یہ مت سمجھیں کہ یہ ختم ہو گئی, یہ ختم نہیں ہوئی بلکہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو کوشش کریں کہ ایک فاصلے پہ لوگوں کے ساتھ رہیں, سینیٹائزر کو زیادہ سے زیادہ یوز کریں, اپنے ہاتھوں کو زیادہ سے زیادہ واش کریں. اور آپ لوگ یہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز مل گئی ہے تو فوراً ہی, اگر آپ گوشت بہت زیادہ مل گیا تو فوراً ہی کھانا شروع کر دیں, جس سے آپ بیمار ہو جائیں گے. کیونکہ اور یہ کوکس وغیرہ, ڈرنکس وغیرہ کائنڈلی ان دنوں میں تھوڑا سا احتیاط کریں, اور کوشش کریں کہ جتنا زیادہ ہو سکے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے, ان کو جتنے بھی آپ کے ارد گرد غریب لوگ ہیں ایک تو ان میں زیادہ سے زیادہ خوشیاں بانٹیں. وہ لازمی نہیں ہے کہ آپ ایک گوشت تو آپ نے دینا ہی دینا ہے, لیکن ساتھ اگر تھوڑی سی اگر آپ مسکراہٹ دے دیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کا ویسے وہ کھل جائیں. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اور کائنڈلی میں نے یہ مت کریں کہ جب ہم عید کے دن نکلتے ہیں تو کافی لوگ ہماری گاڑی کے پاس آ جاتے ہیں, ہمارے پاس آ جاتے ہیں اگر ہمارا گوشت ختم بھی ہو گیا ہے تو, لیکن کوشش کریں کہ اپنی گاڑی کے اندر
2000 5000 के चेंज करवा के रख लें। अगर आपका गोश्त खत्म हो गया तो काइंडली आप उनको ईदी के तौर पे दे दें, वो बच्चे इतने खुश होंगे, इतनी आपको दुआएं देंगे, मेरे ख्याल में शायद इतनी दुआएं आपको कभी भी कोई ना दे। अच्छा, मैं स्टूडेंट साहब ये तो बात होगी, अब मुझे ये बताइए कि अगर हम असद कल चले मैम की तरफ, कबाब बना के खिलाएंगे? कबाब क्या, जो जो डिशें आप कहेंगी ना, मुझे चाइनीज, पाकिस्तानी, इटालियन सारी डिशें बनानी आती हैं। ये बात आप नहीं कह सकते। और काइंडली आप मेरे पास आए, ये और सवाल आप इन्हीं से उंगलियां पूछ- और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, आपको इतना मजा आएगा। असद हमें इनविटेशन मिल गया, वो भी लाइव, तो हम जा रहे हैं आपकी तरफ, हम कल इंशाल्लाह। आएंगे इंशाल्लाह, तो हम आप इंशाल्लाह कबाब मोस्ट बनाइएगा। वेलकम, मोस्ट वेलकम। हाँ असद, मेरा तो कल का खाना डन हो गया है। ठीक है, आप मैं आपके साथ हूँ, ठीक है, डन obviously। हो गया, मुझे पिक कर मुझे लीजिएगा। मुझे भी पिक कर लेना रास्ते में। हम ये साथ भी कर लेंगे, साथ ही चलेंगे। अच्छा अच्छा, क्योंकि हमें तो बनाना आता नहीं है, तो चलो हम इनके हाथ का खा लेंगे, क्योंकि मम्मा तो मेरी बहुत दूर है। अच्छा, आप दीजिए कोई खास पैगाम। अच्छा, आपको खाना नहीं आता, वैसे बात को मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ कि वो कहते हैं कि जो मर्द के दिल का रास्ता है वो पेट से होकर गुजरता असद है, मर्द तो आप मर्द दिल की तक बात कैसे की पहुंचे? बात करेंगे, वो पहले ही दिल में है। असल ये तो गलत बात है, आप तो पहले से दिल में, देखें वो इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह, दिल में नहीं जा सकती। लेकिन मैं तो साइकी बता रहा हूँ ना मर्द की, तो वो कहते हैं कि यहाँ से होके गुजरता है, यहाँ पे आता है, तो फिर आप यहाँ तो तक अगर कैसे आपको कोई पहुंचे? पसंद आएगी तो आप उसका खाना खाने के बाद उसे पसंद करेंगे। लेकिन वो कहते हैं एक बात, तो मुझे बताए ना, क्योंकि उनकी क्या पता लव मैरिज नहीं हुई। हो सकता है उस्मा वैसे मुस्कुरा के देखिए- देखती हूँ तो ओह माय देखिए, गॉड, दिल तक पहुंच जाते होंगे। देखिए, और बहुत सारी चीजें होती हैं दिल तक जाने के लिए। मोहब्बत को परवान चढ़ाने के लिए, बेशक। पेट के अलावा। तो हम लोगों में बहुत सारी चीजें कॉमन है, हम ट्रैवल इकट्ठे करते हैं, हम हमारी बाकी जो एक दूसरे के साथ जो दोस्ती है वो बहुत ज्यादा है। और अल्लाह मियां शक्कर खोरे को गुड़ तो दे ही देता है, तो वो चूंकि मेरे हस्बैंड आर्मी में थे तो हमारे पास एक अदद बैटमैन तो हमेशा ही रहता था, तो वो हम ऐसे ही लेते थे, जिसको थोड़ी बात दाल रोटी आए। तो मेरे हस्बैंड फंसी नहीं है बिल्कुल, अच्छा। ही इज नॉट फंसी, जो भी उनको खाने के लिए आप देते हैं वो बड़ी खुशी से अल्हम्दुलिल्लाह करके खा लेते हैं। और वैसे मुझे तो बहुत बड़ी और नेमत है वैसे ये। भी जो आर्मी के जो लोग होते हैं वो ऐसे ही होते हाँ, हैं। कोई फंसी नहीं है, क्योंकि आज हम दोनों वो वाइफ ऑफ कर्नल है, मैं वाइफ ऑफ मेजर हूँ, तो हम दोनों अच्छा को ये अच्छा अच्छा, चीजें हमें बच के रहना चाहिए भाई। बच के रहे। आपने आप दो आर्मी ऑफिसर्स की वाइफ को बुला लिए। ये असद, आप हम कल का प्लान कैंसिल कर रहे हैं, हम नहीं, नहीं, आर्मी वाले बहुत अच्छे होते हैं, आई लव आर्मी, आई लव बहुत अच्छे होते पाकिस्तान। हैं, बेशक उनकी वजह से ही हम यहाँ पर महफूज बैठे हैं, हमारी सरहदों पे बैठे हैं वो हिफाजत करने के लिए। असद कोई बात करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाह रहा हूँ कि ईद के हवाले से आप सबसे ज्यादा क्या चीज़ मिस करती हैं, जो माजी की ईदें थी, जो आप समझती हैं कि अब वो चीज़ नहीं है मेरे पास, या वो खुशियाँ या कोई चीज़ जिसको आप मिस करती हो, और सेकेंडली आप ये भी कोई ईद के हवाले से कुछ पैगाम भी चाहिए आप? वो जो एक अपने पेरेंट्स की मोहब्बत है, जब उनके घर में थे तो जाहिर है वो माँ बाप तो मिस करते हैं ना, और अब अपने बच्चे हैं तो अल्लाह ताला ने एक और तरह से खुशियाँ दी हैं, लेकिन माँ बाप तो माँ बाप हैं, माँ याद बाप तो तो है। माँ बाप होते हैं, उनको मैं जरूर मिस ईद वाले दिन तो मुझे अभी भी इंतजार होता है कि मामा जो है ना वो मुझे क्या भेज रही हैं, क्या कर रही हैं। ईद वाले चांद रात को वो स्पेशली, जब तक उनकी तरफ से कोई चीज अगर नहीं अभी पहुंची, फोन करूंगी, मामा आपने मेरे कपड़े अभी तक नहीं भेजे। देखा ना, जो हमें ईदी देने वाले थे वो सारे चले गए। तो नहीं, मेरी मामा को अभी भी नानू की तरफ से ईद आती है, मेरी मामा तो कोशिश करी होती है कि जल्दी आ जाए वो, और वो हस्बैंड को भी पसंद है जो, तो एक भी सारा काम जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये भी होता है कि जब कभी मामा की तरफ से ईद आ रही हो और हस्बैंड साहब ने भी ईद दे दी हो, तो फिर आप कौन सा सिलेक्ट करती हैं? सबसे मुश्किल सवाल है माँ माँ की, मदर और सुन रहे हैं मेजर साहब, आप ये अभी नोटिस कर लें। ये चीज। माँ अच्छा मैम, कोई पैगाम दीजिए टीवी टुडे के प्लेटफॉर्म से लोगों के लिए ईद के मौका पर। केयरिंग एंड शेयरिंग, और खुशियाँ बांटें, मोहब्बतें बांटें, एक दूसरे का ख्याल रखें। और जिस तरह नौरीन ने कहा था कि गरीबों को नहीं भूलना आपने, क्योंकि हम ये अल्लाह ताला ने उनका जिम्मा भी हमारे ऊपर दिया है। ठीक है, जैसा कि आपने पैगाम सुना कि उनकी जानिब से कहा गया, मिस उस्मा की जानिब से, कि केयरिंग एंड सलाम असद भाई, सबसे पहले आपको, सना जी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया और आपका। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं, इस टाइम सुन रहे हैं हमें, सबको हमारे दिल की गहराइयों से ईद मुबारक। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टुडे टीवी की टीम का कि उन्होंने मुझे मौका दिया इस ईद के मौका पर। तो मैं बहुत अपने आप को कह लो कि कुछ समझ रहा हूँ कि मुझे मौका मिला यहाँ पे आके परफॉर्म करने का। लेकिन हम के रिजवी आप इतने सुरीले हैं कि हमें मौका देना पड़ा आपको। अब सबसे ये- पहले ये बताइए कि आपने सिंगिंग का आगाज कब से किया, आपको शौक था, आपने बाकायदा सीखा,
या बस खुद ही प्रैक्टिस करके आप माशाल्लाह इतने अच्छे सिंगर बन गए? वो कहता है ना असद भाई कि मुद्दत हुई तुझे जिंदगी से रुखसत किए हुए, मुद्दत हुई तुझे जिंदगी से रुखसत किए हुए, मगर आज भी हर आहट तेरे आने की दस्तक लगी। असद चोट लगी है, अच्छा, असद चोट लगी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं, बट पास्ट की कुछ चीजें होती हैं इंसान के साथ जो उसको रियलाइज जब होती हैं तो जाहिर बात है इंसान एक मशीनरी है, कभी वो सैड भी होती है, कभी वो इंसान खुश भी हो सकता है। तो सिंगिंग का शौक कब से आपको? सिंगिंग का शौक मुझे खुद को टीवी में देखने का बड़ा शौक था, और जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं इमेजिन किया करता था कि यार ये जो टीवी में लोग आके बात करते हैं, गाना गाते हैं, परफॉर्म करते हैं, ये कैसे करते हैं। शायद ये सामने एक खाली कह लो कि वो रैक पड़ा हुआ है, वो टीवी बना हुआ है, पीछे उसके बात कर रहे हैं। मुझे इन चीजों, छोटा बच्चा था, खुद से इमेजिन करता था। तो थोड़ा बड़ा हुआ तो इन चीज़ों की जब नॉलेज हुआ तो मुझे पता चला कि रिकॉर्डिंग ऐसे होती है, ये लाइव भी होता है, रिकॉर्डेड भी होता है, कैमरे लगे होते हैं, पहले इसको रिकॉर्ड किया जाता है, फिर ऑन ईयर किया जाता है। तो सारी चीजें ये मुझे आज अच्छा, शौक कैसे पैदा हुआ? मैं तो शीशे के सामने खड़े होके अपने आप को वो सवारी होती थी और अपने बालों को यूं हाँ, मैं आपको सना जी मजे की बात बताता हूँ। हमारे घर में ना एक टूटा हुआ टीवी था, टूट गया। तो मैंने क्या किया, जो उसका फ्रंट वाला हिस्सा था ना, तो उसको मैंने खोल के ना सामने रख के, तो उसके अंदर मैं बैठ के बात करता था। तो मम्मा से कहता था, मम्मा देखो आपका बेटा टीवी में बात कर रहा है। ये बच्चे में समझ नहीं थी इतनी, लेकिन शौक जो था वो शौक था। देखिए जी, बात ये कि आर्टिस्ट होता है, बेशक फनकार है तो बेकार है, ये सोच देखा है इन 4-5 माह में कि पाकिस्तान में फनकार की कोई कदर नहीं है। लेकिन अगर कदर नहीं भी है, लेकिन आजकल तो आपको कदरदान की जरूरत नहीं है, आपके पास प्लेटफॉर्म है, देखिए यूट्यूब या सोशल मीडिया, बिल्कुल आप वहाँ पे खुद को प्रमोट करें। ये है कि यार यूट्यूब आपको आते ही खाना तो नहीं दे देगी, मेहनत तो दरकार है, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक दौर था जब एक आध सिंगर होता था, वो 2, 4, 5, 10 साल उसने काम किया। जैसे एक मूवी आई, वो 2 साल तक चली, 3 साल तक चली। अब क्या है कि अब डेली के सैकड़ों सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं। अब आज के दौर में नाम बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आज जो भी आता है स्क्रॉल कर रहा है, बस ऊपर जाए जा। लेकिन रिजवी, मैं थोड़ा सा आपसे इख्तिलाफ यहाँ पे करूंगा, जहाँ बहुत ज्यादा मुश्किल है वहाँ बहुत आसान भी हो गया। पहले लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, पहले नहीं था। आज आपके पास प्लेटफॉर्म है, आप अपना टैलेंट दिखाएं। आपके पास आपकी FB ID में, चलो यूट्यूब पे तो मान लेते हैं कि थोड़ा सा टाइम लगता है, FB में कम से कम 5000 फ्रेंड्स होते हैं। अगर आप वहाँ पे एक स्पॉन्सर भी कर देते हैं अपना सॉन्ग, अगर आप में दम होगा बिल्कुल, तो लोग आपको सुनेंगे, जरूर स्क्रॉल करते हुए रुकेंगे और आपको सुनेंगे और सराहेंगे। इस बात को तो हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताइए, सिंगिंग के हवाले से आप बात करें तो मुझे ये बताइए कि आपको इंस्पायर कौन करता था? आपने किसकी तरफ देख के सोचा कि मैं मेरा फेवरेट सिंगर का पूछ रही है वो? फेवरेट सिंगर तो मेरे नुसरत फतेह अली खान साहब को मैंने बहुत सुना है, माशाल्लाह लेजेंड है, एक नाम लिखा उन्होंने हिस्ट्री में। और मेरा फेवरेट जो भी अच्छा गाने वाला है ना, वो मेरा फेवरेट है। लेकिन आइडियल होता है कोई एक? आइडियल तो मैं खुद का ही हूँ, खुद के आइडियल है। अच्छा, खुद के आइडियल है, अगर वो खुद के आइडियल है तो क्यों ना कुछ सुना जाए और लोगों को दिखाया जाए कि अगर वो खुद के आइडियल है तो क्यों है? आइडियल को दिखाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि आप खुद के आइडियल कुछ गुनगुना के दिखाइए कुछ अपना फेवरेट सॉन्ग। जी, मैं QB जी का एक सॉन्ग जी बिल्कुल नजर करता हूँ, ठीक है, इजाजत आप लोगों से? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यहाँ बैठे हैं आपको सुनने के लिए। वे अपने तन दी खबर नहीं ते सजन दी खबर लवे कौन है। वे अपने तन दी खबर नहीं ते सजन दी खबर लवे कौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ते ना पानी ना मैं पौन। ना मैं खाकी ना मैं आतिश ना पानी ना मैं पौन। वे बुले आसाइयां मैं गुट गुट रोइयां। वे बुले आसाइयां मैं गुट गुट रोइयां। जिवें आटे विच लूण जिवें आटे विच लूण। अपने तन दी खबर नहीं ते सजन दी खबर लवे कौन है।
जबरदस्त बेहतरीन, जबरदस्त आपने तो जबरदस्त। बहुत अच्छा बहुत खूबसूरत गाया सब आपने वाकई सही कहा था कि सुर बिखेरे हैं इन्होंने ये जी मेरी आवाज़ सुरीली नहीं, जहाँ तक मुझे लगता है कि आपके कान सुरीले हैं। ये आपका बड़ा फर्क ये है। तो आप कह सकते हैं सब मेरे कान सुरीले हैं ना, वैसे भी मैं बहुत खूबसूरत हूँ तो फिर कान तो सुरीले हाँ, वो होना तो आप बनता ही हैं सना, लेकिन असद इस बात पे मान जाता है कि मैं खूबसूरत हूँ, असद आप लेकिन बहुत मेकअप अच्छे के हैं। साथ ये बात बिल्कुल गलत है असद, मैं दिल की भी खूबसूरत हूँ, आपको ये मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, इंसान को ये जब भी कहती है मैं बाहरी खूबसूरत हूँ, मैं आगे से ये होना कहता हूँ कि चाहिए, makeup के बेसिक साथ। उसकी जब तक सीरत जो है वो खूबसूरत नहीं होगी, इंसान जितना भी खूबसूरत हो तो मेरे नज़रों में वो ज़ीरो है। बिल्कुल सना, जैसे हम बात कर रहे थे, रिजवी ने इसको मेंशन किया कि यहाँ पे टैलेंट की कदर नहीं है, हालांकि नौजवान सिंगर्स काफ़ी हैं जो खुद को मनवाना चाहते हैं। खैर हमने जिक्र किया कि आजकल तो प्लेटफॉर्म है आपके पास, लेकिन वो लोग जो खुद को मनवाना चाहते हैं, आगे आना चाहते हैं, जैसे ये मेहनत कर रहे हैं, तो फिर आप गुजारा कैसे होता है, या सिर्फ इसी पे आप इक्तफा करते हैं या साथ जॉब भी करते हैं? शुरू से मेरा एक एम था कि मैंने पैशन और प्रोफेशन को मैंने इकट्ठा नहीं किया। दो वेज थे तो मैंने दो ही रखे। एक टाइम के आने के बाद मैंने इकट्ठा कर दिया कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक अपनी प्रोडक्शन चला रहा हूँ द साउंड बॉक्स एंटरटेनमेंट के नाम से, ठीक है, और आज मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो जब तक मेरा ये नहीं था, आज भी मैं अपना अलग बिजनेस कर रहा हूँ, ये मेरा पैशन है, मेरा शौक है, ठीक है, ये भी मेरा प्रोफेशन नहीं है। ना ही आज तक मैंने ये सोचा है कि मुझे यहाँ से अर्निंग हो, यहाँ से मैं कुछ कमाऊँ, नहीं। अच्छा रिजवी साहब, अभी अर्निंग की बात हो रही है तो ये बताएं कि आपने अभी तक आज तक किसी को गिफ्ट दिया है और क्या गिफ्ट दिया है किसी खास को? वैसे तो गिफ्ट Especially ईद के मौका पे। ईद के मौके पे, क्योंकि आज ईद का दिन है तो इस हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बताइए आपने ईदी में क्या भेजा? देखें, सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आपका इखलाक, आपका प्यार। बेशक ये तो होता है, ठीक है, तो लेकिन जब भी इसके मैं अलावा भी कुछ चाहिए होता है, इसके अलावा भी इसके तो अलावा जब चूड़ियां भी मैटर करती हैं। देखें आप फिर लड़कियों की बात ख्वाहिशात को होती उस साइड पे लेके जा रहे हैं तो हम तो बस पूछना चाह रहे हैं कि ईदी में क्या दिया? ईदी में मैंने कुछ भी नहीं दिया आज तक। असद ये इंतहाई कंजूस है, हमारी इनके साथ नहीं बनेगी। बिल्कुल नहीं, ये तो ज्यादती है फिर ये उनके तो साथ। ज्यादती है। देखें जी, जिनके साथ भी ये उनके तो साथ लेन का देन है। अब बात ये भी नहीं कि मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, बच्चों को, कजन्स को, फ्रेंड्स को, इवन के यहाँ तक कि हम जो वेयरिंग करते हैं वो भी एक दूसरे की पहन लेते हैं। ये और तो बात गिफ्ट अलग की है। रही गिफ्ट की बात, तो एक टाइम था जब बहुत सारे गिफ्ट दिए थे। नहीं अभी तो ईद तो नहीं, खास इसमें सना मौका हो शॉर्ट गया है। लगी हुई है, अब वो गिफ्ट नहीं देते, वो जो इतने बिल्कुल, देने थे बिल्कुल दे सही बात दिए। है सर, मैं इत्तेफाक कर रही हूँ आपकी बात से, क्योंकि इन्होंने तो ईदी भी नहीं भेजी यार, इतने इम्पोर्टेंट मौका था और आपने ईदी मिस कर दी। मतलब बैंगल्स तक नहीं आपने आपकी ना इस बात पे मुझे एक दो लाइनें याद आ गई। नहीं आना था तो मत आते, तो मत आते। मगर बता देते। नहीं आना था तो मत आते, लेकिन बता देते। मगर बता देते। फिर कोई यूं ही उम्र भर कोई तेरा इंतजार तो ना करे। ओए होए होए, सना कमाल बहुत हो गहरी गया, लगी हुई है। बहुत गहरी है सर। अच्छा रिजवी, ये आप बताइएगा क्या कि जानेंगे? जैसा कि न्यूज एंकर्स का दिन तो चैनल में गुजरता है, जी। उनकी ईद भी यहीं पे है, उनकी अच्छा, सारी प्लीज दुख खुशियां ताज़ा यहीं मत पे हैं। कीजिए आप इस तरह मैं के। उससे देखें पूछना देखें चाह रहा हूं असद कि भाई, singers इस की- चीज पे आप देखें कि आप एंकर हो, मैं सिंगर हूँ। आपकी यहाँ पे जॉब है तो मेरी भी यहाँ पे जॉब है। मैं ये पूछना सब चाह रहा लोग ईद की खुशियां मना रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। बिल्कुल। लोग सामने कोई कबाब लेके बैठा हुआ है, कोई टिक्के लेके बैठा हम हुआ भी है। खाएंगे आप भी चाह बाहर रहे हैं कि जाके। आप चाह रहे हैं कि हमें भी भूख सना लग जाए। बताएं कि हमने खाना है बाहर जाके। बिल्कुल, हमने तो खाना हमारे है, साथ असद ही ने हैं। मंगवा के रखा है। तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और अपना काम किए जा रहे हैं, वो लोग अपना काम किए जा रहे हैं। यार कुछ तो ख्याल करो हमारा भी। आपने ख्याल नहीं किया, आप आते हुए कुछ नहीं लेके आए। इन्होंने मुझे कहा था कि प्रोग्राम के बाद खाना मैं खिलाऊंगा। नहीं वो तो डन है। असद आपने अच्छी खबर सुनाई है वैसे, मुझे प्रोग्राम वैसे के बहुत बाद वो तो लग रही है। पार्टी डन है, खाना मेरी तरफ। डन हो गया असद भाई से वो पहले डील असद, हमने तो आज की और कल की दोनों की डील्स कर ली हैं। ठीक है, पहले इनको यहाँ कुछ हम खिलाएंगे, बिल्कुल, बाकी फिर हम देखते हैं, फिर अब तो दो आप बात करते हैं इनके खिलाएंगे। साथ।
ऐसी है कि आर्टिस्ट हमेशा अकेला ही होता है। हाँ ये वैसे पर इस भी आज हम दिल खोल दें, जिसने आपको चीट किया, जिसने आपको Artist- डिसीव किया, आज बताएं आप नहीं यहाँ। नहीं, मैं यहाँ पे किसी को बदनाम करने नहीं आया। नहीं, ईद के मौका पे आप उनको कहें कि मैंने माफ किया, लेकिन मैं हमें बस बता दें हुआ क्या था। इतना उनके लिए कहूँगा कि आए जहाँ उनके भी हो लिए खुश रहो, आबाद रहो। आबाद रहो, अल्लाह पाक आपकी उम्र को दराज करे। तो बस ऐसा नहीं करते जैसा आपने जैसा किया। किया है ऐसा नहीं तो- करते। चलें जी, माफ कर दिया ना आपने उन्हें। जी देखिए, माफ करने वाला बड़ा है। चलें, जब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे माफ कर देना चाहिए, सो इंसान की हर मजबूरियाँ होती हैं। ठीक है, माफ कर दिए सना। अब जरा कुछ ईद के हवाले से बात करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि ईद आप कैसे गुजारते हैं? ईद ज़्यादा टाइम तो मैं घर में रह के गुजारता हूँ। अगर कोई परफॉर्मेंस या कोई शो बुकिंग ना हो तो आजकल तो वैसे भी पिछले 4-5 माह से घरों में थे, स्टूडियो के अंदर ही बस कैद खाने में रहे हैं। तो आगे अल्लाह पाक की ज़ात बेहतर करे कि आगे थोड़ा इंशाल्लाह हालात कम बेहतर हो हो, रहे तो हैं। हालात बेहतर हों तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आगे की। एग्जैक्टली, चूंकि काफ़ी प्रोग्राम्स तो नहीं हुए कोरोना की वजह से जी, पिछले को 5-6 माह से, और ख़ासतौर पे जो सिंगर्स हैं, जो अदाकार हैं, जो स्टेज एक्टर्स हैं, वो काफ़ी लोग हैं जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा। देखें जी, मेरे ख्याल में जहाँ पे सारी चीज़ें उन्होंने ओपन की हैं, अब SOPs के तहत वो लोग जो इस फील्ड से मुतालिक हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। असद भाई ऐसा है कि मैं बियर कर लूँगा, मैं अकेला हूँ, लेकिन जिस बंदे के 4 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं ना, जिसका घर रेंट पे है ना, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बहुत टफ है। वो ये खुद बात तो भूखा रह सकता है, चलती रहेंगी क्योंकि हम वो तो भूखा रह सकता है, बात लेकिन सिंगर्स के कर रहे हैं, चूंकि वो बेचारे सिंगर्स हैं, तो उनके पास अब वो बेचारे singers रोजगार नहीं है। वो असल बेचारे पहले singers प्रोग्राम हैं। तो जिनके कोई ऐसा करना अदर चाहिए। बिजनेस हैं, ठीक है, वो तो अपना सर्वाइव कर रहे हैं, बट जो जिनका आय इस वे से रहा था, तो वो तो यार शौक हो गए हैं। चलो ये गुफ्तगू तो हम करते रहेंगे। आप ये बताइए कि आज आप आते हुए कितनी ईदी लेकर आए हैं? लेकर आ रही है, दे के आ रहे हैं। ये फिलहाल तो अभी देखे आ रहा हूँ। मामा से नहीं मिली? हाँ मिली है, लेकिन चार ये झूठे हैं, वो कुछ ये शुमार बता है, नहीं बता रहे रहे हैं। हैं। वैसे अब नहीं आपको है, लेनी नहीं बता दें, आप हिस्सेदार बन जाओ इसमें यार, कि आपको हमारा इतनी हिस्सा मिली है बनता है। तो आधी तो हमारी बनती देखिए है ना। ऑब्वियसली हमारा हिस्सा बनता है। सच क्यों हमारा हिस्सा नहीं बनता? ईद उल अजहा का मौका है, एक तो आप खाली हाथ आ नहीं, गए। मेरा तो नहीं बनता, लेकिन इनका बनता है, आपको मेरा इनको बनता देना है, चाहिए। बिल्कुल बनता है। चले जी, सोचते हैं इस सिर्फ बारे में। नाजुक का जो हिस्सा हर जगह पे बनता है, बेशक। बल्कि मुझे भी देना पड़ेगा, इमोशनल और ब्लैकमेल आपको कर भी रहे हो, देना पड़ेगा। इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं हम तो ये। बता रहे हैं कि सर अगर हमारा हिस्सा अभी बनता मौका है, अगर निकलवा सकती है। ये लाइव बैठे हैं, सोच रहे हैं। चलें, कोई नहीं, देखा जाएगा। Right, right, फिर yes, मैंने पहले कहा था कि गिव एंड टेक है। वो ये कहना चाह रहे हैं कि बाद में देंगे, ठीक है, हाँ। हम आपको फोर्स नहीं करेंगे, आप खुशी से नहीं देना नहीं, चाह रहे बाद तो में कोई हम बात ले नहीं। लेंगे, तो आप भी don't worry। गिव एंड टेक है, एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो, मुझे भी पता चले कि यार मैं कुछ दे रहा मैं हूँ नहीं और दूंगी। मुझे कुछ आ रहा है। नहीं नहीं, सर मैं नहीं दूंगी, देखिए, finger बिल्कुल से मैं तो ईदी बात बिल्कुल नहीं देने वाली। अच्छा मुझे ये बताएं, हम ईदी का टॉपिक ही चेंज कर लेते हैं। सर ये मेरे पे वार हो रहा है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ईदी में से किसी को भी मैं हिस्सेदार पता बनाऊं। चल गया वो शेख है। शेर है? ओह माय गॉड। नहीं, ये मैं तो- नहीं, दिल के शेख है वैसे तो दिल के नहीं। शेख। असल आपने मुझे नहीं ईदी मांगी ना, आप बहुत अच्छे हैं। आप बस ईद इसके बाद वो शो के बाद आप मुझे दे दीजिएगा ईदी, ठीक है? मैं आपको बिल्कुल अभी फोर्स नहीं करिए। तो मुझे ये बताइए कि ईद पे सबसे ज्यादा खुशी आपको किस बात की होती है? ईद पे सबसे ज्यादा खुशी मॉम डैड से मिलने पर, फैमिली से मिलने पर, उनके साथ टाइम स्पेंड करने पर। उसके बाद फिर तरह तरह की जब डिशेज आ रही हैं तो उनमें थोड़ा थोड़ा खाया जा रहा है, तो बड़ा फिर। लेकिन सिर्फ डिशेज नहीं आती, लड़कों की जिम्मेदारी ये भी होती है कि वो कुर्बानी भी करते हाँ, हैं। मेरी गोश्त स्पेशली बांटते भी हैं। ये जिम्मेदारी तो ये क्या मेरी, ये बल्कि जिम्मेदारी नहीं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जानवर की ज़िबा लेके आने से लेकर ज़िबा होने तक और गोश्त बटने तक, कह लो कि मैं एक टी शर्ट और निकर में अब एक कसाई बने होते हैं। मैं एक कसाई बना होता हूँ। सर हमारी तो बहुत खूबसूरत होती है सर। मुझे तो वैसे भी ईद की रात को, चांद रात को, मुझे वैसे ही हम लेट वो हो रहे होते हैं, फ्री, मुझे वैसे नींद नहीं आती। अम्मी ने वो हाथ में लगा के इतनी सारी मेहंदी, उसके ऊपर कपड़ा बांधा हुआ था, जो छोटे बच्चे होते थे, तो मेरे तो भाइयों के भी ये मम्मा ने किया हुआ था, हाथ पे ज्यादा लेकिन सारी आजकल मेहंदी लगा के सना कपड़ा दौर बांधा चेंज हो चुका है, आप तब छोटे थे, बड़े हो गए हैं। अच्छा, तो अब मम्मा आपके की वो भाइयों की मेहंदी भी तो वही भी जिम्मेदारी है। आपके तो हाथों में मेहंदी होती है, लेकिन उनके हाथों में वो खून लगा होता है, कुर्बानी के जानवर होता नहीं, है। सर, लड़कों मेरे के भाई- बताएं जरा। ऐसा शादी असद की भाई, तरह वो तो बिल्कुल आपको ही कैसा जैसे ही फील होता होगा कि यार सब लोग नवाबों की तरह अपने ड्रेसिंग में करके टशन कर रहे हो और आप लोग जनाब यहाँ से ब्लड साफ कर रहे हो, वो कसाई को बोल रहे हो कि यार आपको रोटी तब याद नहीं आता जब ईद उल फितर पे सारी माएं बहनें किचन में होती हैं और आप लोग सिर्फ मजे उड़ा रहे होते हैं? नहीं, वो देखिए हम उनका credit तो एक देते हैं मखसूस आपको। टाइम है, आधा घंटा 2 घंटे नहीं, मेड्स हैं नहीं, घर नहीं, में, नहीं, तो वो हमें क्रेडिट देना चाहिए।
ख्वातीन को क्रेडिट मिलना चाहिए, वो बहुत मेहनत करती हैं और कुर्बानी के मौका पे भी हम तो सिर्फ काम करते हैं बाहर। नहीं बिल्कुल कुकिंग इन्हें करनी पड़ती है, गर्मी में इन्हें जुलूसना पड़ता है, हमारे लिए खवातीन खाना का जी बनाना बहुत पड़ता है। बड़ा इसमें रोल होता है, किरदार है इसमें Especially माओं कि स्पेशली माओं का या जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, उनका तो भाभी हैं, बहनें हैं, तो सबका बड़ा एक किरदार होता है कि तरह तरह की डिशेस बनाना उनका ही काम है। तो जी बिल्कुल, और ख्वातीन को क्रेडिट बिल्कुल जाता है क्योंकि जो बड़ी ईद है ख़ास तौर पे ये तो होती ख्वातीन की है। उन्होंने घर वालों के लिए मज़े मज़े के खाने पकाने होते हैं, कोई कबाब बना रहा होता है, कोई चिकन कढ़ाई बना रही होती है। सना तो मैं क्रेडिट दूंगा आपको, हालांकि आपको बनाना नहीं आता लेकिन फिर भी आपको क्रेडिट बेइज्जती जाता के साथ है। मुझे क्रेडिट बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। देखिए अगर मुझे बनाना कुछ नहीं आता तो आपको पता है हमारे कई गेस्ट ऐसे हैं जिन्हें कुछ नहीं बनाना आता, तो आप मुझे ये ताना नहीं दे बिल्कुल, सकते। मैं सिर्फ सना को नहीं दे सकता क्योंकि सना का मानना ये है कि जब मैं अगले घर में जाऊंगी मैं वहाँ सीख जाऊंगी। तो सना विश यू बेस्ट ऑफ लक, Thank you so और आप सारे खुश रहिए, ईद की खुशियाँ बांटिए।